سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سلان۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یقیناً وہ آج کے دن کی مناسبت سے ہی چنا گیا ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے کہیں یا پھر آج کے دن کے حوالے سے بات ہو، آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو، چند جملے شروع میں بیان کرنا چاہوں گی جو کہ موضوع سے مطابقت ہی رکھتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شہید شاہد بھی ہے، مشہود بھی اور مشاہد بھی، حاضر بھی ہے اور ناصر بھی، شہادت کمال عشق بھی ہے اور عروج مودت بھی اور انتہائے مطابعت بھی۔ حسن الہی کے جلووں میں گم و شاگ جب ان کے سروں کو مقدس گردنوں کو تن سے جدا کیا جاتا ہے تو وہ مقام مرتضیٰ پر فائز ہو کر سر نیزہ تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یقیناً ہم گفتگو کر رہے ہیں شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکمل باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تعام ہے، اسی لیے یہ لازم ہے کہ جتنی عظیم قربانی ہے اس کا اتنا ہی تسلسل سے اور اتنا ہی زیادہ ذکر کیا جائے۔ یہ واقعہ کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا عملی مصداق ہے، جو کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج اسی کا ہم تذکرہ کریں گے، آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو ہوگی۔ یوم عاشورہ کو مزید کون کون سے واقعات رونما ہوئے اور ان کے حوالے سے ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ان کو سمجھا جا سکتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے کہ اس دن کی مناسبت کیا ہے، اس دن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی اور ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم ذکیہ نجفی صاحبہ۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہترین اسلامک اسکالرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ ہیں، آپ اسلامک اسکالر ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں، صوفی ازم سے خاص لگاؤ رکھتی ہیں۔ آپ کو بھی آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، ایک اور شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، سوشیولوجسٹ ہیں، راستی انسٹیٹیوٹ کی چیئرپرسن ہیں اور آپ بھی ماہر تعلیم ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں نور فاطمہ، جو کہ نعت خواں ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام کے آخر میں آپ بھی ایک کلام پیش کریں گے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ گفتگو کا آغاز میں خانم آپ سے کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنی عظیم شہادت ہوگی اس کا اتنا ہی تسلسل سے ذکر بھی ہوگا اور اتنی بار اس کا ذکر کیا جائے گا۔ جب جب ذکر ہوگا ایک نئی چاشنی محسوس ہوگی، ایک نیا درد محسوس ہوگا، ایک نیا غم محسوس ہوگا، اور یہ غم رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ مشہور حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہے، یہ وجہ تخلیق کائنات، جن کے لیے یہ دنیا ہے، جن کے لیے آخرت ہے، جن کے لیے جنت ہے، جن کے لیے جہنم ہے، جن کے لیے زمین اور آسمان ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو میرے خیال میں اس کو تو ہم چاہے جتنا بھی اس کی عمق گہرائی میں دیکھیں، ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حسین کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں۔ یقیناً۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں اور ہم سب سفینہ نجات ہیں، چراغ ہدایت ہیں، لیکن جو کشتی نجات امام حسین کی ہے وہ اوسع اور اسرع ہے، یعنی وہ تیز بھی ہے اور وہ کشادہ بھی ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ آپ کے پاس جو نسبت ہے رسول سے، پنجتن سے، اور جو آپ کا قیام ہے اور جو آپ کی شہادت ہے وہ پنجتن میں خاص ہے۔ اور بہت پیاری کسی نے اس کی تشریح کی اور کہا کیوں نہ حسین کی کشتی نجات، یہ کشتی اوسع، کشادہ ہو، تیز ہو، اس میں زینب ہیں،
वाह सुभान अल्लाह। जिनके ऐसे साथी हों, शरीक हों और इतने शुहदा हों, यकीनन वो बहुत से लोगों के लिए हिदायत का भी मंबा है बेशक, और बहुत सारे लोगों के लिए वो निजात का भी ज़रिया है। खूबसूरत बात। इसी को कंटिन्यू करेंगे नाहिदा साहिबा, जैसे कि अभी खानम ने बड़ी खूबसूरती के साथ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया, ज़रा इमाम की शख्सी खसूसियात पर आते हैं। आपके अलकाबात, आपकी सीरत, आपकी बहादुरी, आपकी शुजात, मैं चाह रही हूँ कि आप इस समंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश करें। आज का दिन जो कि योम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और आज का जो दिन है ये वो दिन है हुमा कि 1400 साल बीत गए, और इन 1400 साल में कोई वक्त का गौस, कोई वली, कलंदर, कुतब, अब्दाल ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस दिन का गम ना मनाया हो। यकीनन ऐसे। और ये जो सानिहा करबला जिसको हम कहते हैं, और जिसको हम लोग जो है वो दुख का और गम का, अलम का जो है वो हम दिन मनाते हैं, इस दिन को किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो जंगे करबला लिख सके, क्योंकि ये जंग है ही नहीं। तो आज के दिन हम खसूसन बिलखसूस एक एक शहीद को, और खसूसन बिलखसूस सैयदुश्शुहदा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खसूसी सलाम पेश करते हैं। और आज के इस दिन के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में इमाम अली मुकाम और तमाम शुहदा हमें जो है अपनी गुलामी में कबूल व मंजूर फरमाएं। आपने हुक्म किया कि इमाम की शख्सी खसूसियात, हम क्या, हमारी ज़ुबानें क्या, हमारे अल्फाज क्या, कि जिनकी खसूसियत के लिए, जिनकी खसूसियात के लिए अभी वो दुनिया में तशरीफ़ ही नहीं लाए, सुभान अल्लाह। कई अरसा पहले जो है अल्लाह पाक का कलाम बोल उठता है कि इन्ना अअतैना कल कौसर, और ये वो आयत मुबारका कि जिसकी अमली तफसीर के लिए मेरे और आपके आकाओ मौला हजूर ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कई बरस इंतज़ार फरमाया। और जब इस आयत मुबारका की अमली तफसीर दुनिया में तशरीफ़ लाई, पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आकाओ मौला का वो ख्वाब जो है वो ताबीर हो गया। वो ख्वाब आपके हाथों में था, वो तफसीर आपकी तफसीर कौसर आपके हाथों में थी, और वो इमाम अली मुकाम के ना सिर्फ जो है सूरह अल कौसर, बल्कि आपका जो जिक्र पाक है वो कभी हमें आयत ततहीर में मिलता है, कभी आया मुबाहला में मिलता है, कभी सूरह दाहर में मिलता है, कभी सूरह रहमान में मिलता है। तो ये आयात के झुरमट में और अहदीस के झुरमट में तशरीफ लाने वाली ज़ात इमाम अली मुकाम के, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपके कानों में जो सबसे पहले आवाज़ जाती है वो हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ जाती है। आपको जो घुट्टी मिलती है वो घुट्टी भी क्या है, लुआब ताहने पाक अलैहिस्सलाम है। और आपको जो आगोश मिलती है तरबियत के लिए, वो आगोश भी जो है वो मंबाए रिसालत की आगोश मिलती है। और आप पंतन पाक की वो एक प्यारी शख्सियत हैं कि जिनके बगैर ये फूल मुकम्मल नहीं होता, आयत ततहीर मुकम्मल नहीं होती, आया मुबाहला मुकम्मल नहीं होती, आपके बगैर ये घराना मुकम्मल नहीं होता, कि हुसैन के बगैर तो कलमा मुकम्मल नहीं होता, ना ये दीन मुकम्मल होता है। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की आज के दिन की ये कुर्बानी ना होती, आज हम जो है फख्र से ना ये कलमा पढ़ रहे होते, ना ये नमाज होती, ना अजान होती, ना दीन होता, बल्कि कुछ भी ना होता। इमाम अली मुकाम ने अपने खानवादे समेत वो कुर्बानी दी कि जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक याद है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह पाक के इस हुक्म को वो 10 मुहर्रम के दिन योम आशूर पे फिर वो उसकी अमली तफसीर करके दुनिया को दिखा दिया कि ये कुर्बानी है, ये नमाज। यकीनन यकीनन। डॉक्टर इरम साहिबा, जब हम बात करते हैं जिस अजीम कुर्बानी की और कुर्बानी पेश करने वाली हस्ती की, उनकी शख्सियत की बात करें, उनकी शख्सी खसूसियात की बात करें, कितना ज़रूरी है कि हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझें, और उनकी शख्सियत का जो फ़लसफ़ा है, जो बेसिक उनकी शख्सियत के हमें ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आती हैं, उनको समझना कितना आसान है या कितना मुश्किल है हमारे लिए? हुमा, जिनकी तख्लीक आम इंसानों से मुख्तलिफ, जिनका नूर आम इंसानों से मुख्तलिफ, जिनका हमीर आम इंसानों से मुख्तलिफ, और हमें नहीं पता उनका हमीर कहाँ से लाया गया, कैसे गूंदा गया, ये हमारी अक्ल से बहुत बालातर बात है। तो उनके बारे में हमारी कम अक्ल, कम सोच और इस नफ्स के साथ हम क्या उनकी फ़जीलत बयान कर सकते हैं? बेशक हमारी ज़ुबान इस काबिल नहीं है।
हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उम्मत ने इस राज को समझा नहीं है। और फिर वो ख्वाब जिसमें उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि आपके जिस्म का टुकड़ा मुबारक मेरी गोद में आता है, ये क्या है? लेकिन हमने इसको समझा नहीं है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक अल्लाह के नूर से, और फिर वो नूर आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में, और उस नूर से फिर पंचतन पाक का नूर। और फिर अल्लाह ताला अपनी किताब में कहता है कि इसको पाक लोग हाथ लगाएंगे, पाक लोग समझेंगे। और उस नूर की जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल जो मजहर है, वो पंचतन पाक में आपको नज़र आता है। तो आप मुझे बताएं, इस हम अपने पोल्यूटेड नफ्स के साथ, हम अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ, जिसका नफ्स का तज़किया नहीं हुआ, हम इमाम हुसैन को नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। हम इमाम हुसैन की एसेंस को नहीं समझ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के सरदारों को देखना है तो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को देखो। ये कौन सी जन्नत है? ये कौन सी जन्नत है जिसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं? जो इबादत आप हूरो कसूर उस जन्नत के लिए करते हैं, ये उनकी समझ में तो शायद वही जन्नत होगी, लेकिन हुमा आशिकों के लिए ये जन्नत और है। ये सुकून, ये मार्फत, ये जो हक की समझ है, आशिकों के लिए तो दीदार हक व जन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उनके सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। तो आप ये देखें, उनसे कनेक्ट हुए बगैर, उनसे जुड़े बगैर आपको ये मार्फत के जाम नहीं मिल सकते हैं, आपको हक की पहचान नहीं मिल सकती है। फिर कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कौम से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, सिर्फ अपने क़राबत की मुअद्दत। हुमा यहाँ पे मोहब्बत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, मुअद्दत। उसका मतलब क्या है कि आप रह ही नहीं सकते हैं। यानी हुमा इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप मछली या पानी में आप डाले, निकालें, वो तो तड़प तड़प के मर जाएगी। तो इस मोहब्बत को उससे जो है वो सिंबॉलिकली बताया गया है कि इतनी मोहब्बत हो, इतनी कराबत हो, फिर कहीं जाके आप मार्फत की बात करें और फिर कहीं जाके आपको हक की पहचान होगी। तो उनके मकाम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जिनके साथ मोहब्बत किए बगैर आपका दीन ही, ईमान ही मुकम्मल नहीं है, आप क्रॉस ही नहीं। वही बात है कि मोहब्बत भी पीछे रह जाती है, मवद्दत जब आ जाती है, मवद्दत जब आ जाती है, यानी इस लेवल की। तो क्या हमने इसको समझा है? क्या हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत, हमारी डेडिकेशन, हमारी कमिटमेंट इमाम हुसैन के साथ इस लेवल की है? अगर नहीं है तो हम उनके मकाम को नहीं समझ सकते, हम उनकी शख्सियत को नहीं समझ सकते, शख्सियत के वो तमाम पहलू जिनकी अमली तफसीर हमें मारका करबला में, मैदान करबला में नज़र आती है। किस तरह से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने डट कर अपनी शुजाअत, अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी, अपनी जानिसारी, अपनी दिलावरी पेश की, और वही कनेक्शन हमें जो है वो डेवलप करना है। आज जब हम मवद्दत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो फिर हमें पीछे जाना है, पीछे देखना है कि हमारी जड़ों में मैदान करबला में किस तरह से आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें या फिर कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया हासिल करने की कोशिश करें। ये है मैदान करबला, जिसकी मज़ीद तफसील भी हम जानेंगे। वहाँ पे मज़ीद और कौन कौन से वाक़यात आज के दिन रोनुमा हुए, उन पर भी नज़र दौड़ाई जाएगी, उन पर भी रोशनी डाली जाएगी। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहादत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से। खानम, जिस तरह से दास्तान गम लिखी जा रही है, और इस दास्तान गम का तज़किरा जब भी किया जाए यकीनन इसमें गम गुसारी है, इसमें हर आँख पुरनम है, हर आँख अश्कबार है, दिल गम ज़दा है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन गम गुसारी नहीं की जाती। इस शहादत का अहवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी।
देखिए रोज़े आशूरा जो है ये कहने को फ़जर से लेकर असर के नमाज तक का एक सानहा था। आगाज़ है फ़जर के वक्त, नमाज फ़जर के लिए जब सफ़बंदी होती है और इमाम उसकी इमामत फरमाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त तकरीबन कोई 15 सहाबी जिनसे ये कहा जाता है, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि आप इस नमाज की हिफाजत करें और हम 2 रकत नमाज, फ़जर की नमाज कितनी होती है, लेकिन जब शिमर बिन ज़िलजौशन जो एग्जैक्टली जो तीरंदाज़ों और नेज़ा बरदारों का सरबराह था और उसके पास थोड़े से तलवार बरदार थे, उसने कहा कि ये बेहतरीन वक्त है जब हम इनके ऊपर हमला कर सकते हैं और इनकी हौसला शिकनी कर सकते हैं। तो नमाज फ़जर में तीर बरसाए गए और बहुत सारे आपके असहाब जो हैं उनकी शहादत, एक रिवायत में है 15, एक रिवायत में है 30 और टोटल तादाद जो है वो हम सब जानते हैं 72 है। और उसके बाद इमाम हुसैन ने एक तरीक़ा जो जंग का है उसको मुअय्यन फरमाया कि मेरा एक सिपाही आएगा, हम लश्कर नहीं लड़ेंगे क्योंकि इतनी तादाद नहीं है, एक सिपाही आएगा और तुम उससे मुकाबला करो। और आप देखें ना कि कहाँ 30 से 40 से 50 हज़ार का लश्कर और कहाँ एक फ़र्द का जाना। मैं सारे जितने भी मुजाहिदीन हैं इमाम हुसैन के जो यारान हैं उन सब की सारी चीज़ों को अगर मैं ख़ुलासा करना चाहूँ तो आबिस बिन शबीब एक मुजाहिद हैं, वो जब महाज पर जाते हैं तो हर एक की आदत है, एक तरीक़ा दस्तूर था कि रजस पढ़ते थे और उसमें वो अपना हसब नसब, अपनी शुजाअत, अपनी स्पिरिट, अपने जज्बे को बयान करते तारुफ थे। हाँ, तो जनाब आबिस ने जो रजस पढ़े वो बहुत प्यारे, उन्होंने कहा अमीरी हुसैन व निअमल अमीर सुरूर फ़ुआद बशीर नज़ीर अलीउन व फ़ातिमा अबवाहा व हल तअलमून लहू मिन नज़ीर, कि मेरा अमीर मेरा मौला हुसैन है और वो बेहतरीन मौला है। बेशक। और वो हुसैन जो रसूल के दिल की ठंडक है और पूरी कायनात के लिए वजह करार पाई है, जिसके बाबा अली और जिसकी वालिदा फ़ातिमा तो ज़हरा हैं, क्या तुम्हें इनकी कोई नज़ीर मिलती है? मेरा कोई हसब नसब नहीं है, मेरा कोई जज्बा नहीं है, मेरे लिए यही बात बहुत है कि मेरा अमीर मेरा मौला हुसैन है, मेरा जो सरदार लश्कर है वो हुसैन है। तो ये जज्बा था, इसीलिए तारीख़ गवाह है कि जनाब हबीब जैसे भी बूढ़े गए, जनाब अनस जैसे भी बुज़ुर्ग, जनाब अनस के बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, इतने बुज़ुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने पट्टी बांधी और अपनी बहू को ऊपर खींचा और कहा कि जो जितनी जान तवानाई है वो आप पर कुर्बान करेंगे। और जनाब आबिस जैसे जवान, जनाब वहाब कल्बी जैसे जवान, और फिर उसके बाद हम जनाब अली असगर जैसे शिशमाहा को भी देखते हैं। तो ये वो लश्कर था जिसने जब अपनी जान निसार कर दी तो उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और मेरी जान कुर्बान। देखिए रहमतुल्लिल आलमीन की नुमाइंदगी है ना, इसीलिए आपने यक्का व तन्हा होने के बाद जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया उसमें आपने फरमाया मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन मत करो, क़यामत वाले दिन तुम इसकी सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैं तुम्हें इस चीज़ से बाज रहने के लिए कहता हूँ। नाहिदा साहिबा, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मैदान करबला में जवानाने जो हैं जन्नत ने अपना नमूना पेश किया, जवानाने जन्नत ने अपने जो है वो कुर्बानी पेश की, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का नज़ाना पेश किया। वहीं अगर इसे थोड़ा सा हम पीछे ले जाएं और एक रात कबल का तस्करा करें, शब आशूर का अगर हम तस्करा करें यानी कि 9 मुहर्रमुल हराम, जिस तरह से हमें इमाम का वो किरदार नज़र आता है, वो जुर्रत, वो दिलेरी नज़र आती है कि जानते हैं आगे कल हालात क्या होने वाले हैं, मेरी जान का नजराना भी मुझे देना पड़ेगा, मुझे जो है वो अपनी जान की कुर्बानी भी पेश करनी है, लेकिन ख़ुद को तैयार कर रहे हैं, अपने असहाब को तैयार कर रहे हैं, उन तमाम जवानों को तैयार कर रहे हैं जिन्होंने मैदान करबला में जाके परफॉर्म करना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है। शब आशूर 9 मुहर्रम की जब रात आती है तो मोहलत मांगी जाती है कि हमने आज की रात अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करनी है, हमने इबादत में रात गुजारनी है। तो जब आप इबादत से फारिग होकर खुतबा फरमाते हैं, इमाम का जो आखिरी खुतबा था अपने असहाब और अपने ख़ानदान, अपने चश्मो चराग के साथ, उस खुतबे में
آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرا سر چاہیے، انہوں نے یہ مجھے قتل کرنے کی غرض سے یہاں پہ آئی ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو میں تم سب کو، امام کا بہت ہی مشہور یہ خطبہ ہے کہ میں آپ سب کو مہلت دیتا ہوں، میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفاداری کا میں شاہد ہوں، اور میں اپنے اللہ اور اپنے نانا جان اپنے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں قیامت والے دن تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ بے شک۔ پھر آپ چراغ جب بجھا دیتے ہیں اور دوبارہ سے جب اس جو ہے چراغ کو جلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے چراغ بجھانے کے بعد امام جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ امام ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ ہم قیامت والے دن جناب زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ جناب مولا غازی عباس تو آپ کے بھائی ہوئے۔ اب یہاں پہ میں ایک صحابی حسین کا ذکر لازمی کروں گی، حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں امام یہ تو ایک جان ہے، ہماری 1000 جانیں آپ پہ قربان، میرے 70 مرتبہ اگر کوئی میری جان لے اور دوبارہ داخل کر دے تب بھی میں ہر جان آپ کے قدم پہ قربان کروں گا، ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، ایک جانب شہنشاہ وفا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری جان آپ پہ قربان، دوسری جانب صحابی حسین۔ پھر جو ہے یہ تو اصحاب کا جذبہ تھا، اسی طرح پھر جو ہے وہ جتنے آپ کے وہاں پہ بیٹے تھے، آپ کے بھتیجے تھے، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار وہاں پہ موجود تھے، بنی ہاشم کا ایک ایک چاند، ایک ایک وہ سورج زمین پہ آیا ہوا تھا، ان سب کا یہی سیم ان کی جو تھی وہ ایموشنز تھے، ان کے سیم جملے تھے کہ سب سے پہلے ہر کسی کا شہادت کا جذبہ تھا کہ امام سے پہلے ہم نے شہید ہونا ہے۔ ایک طرف حضرت جو ہے قاسم بن حسن علیہ السلام آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی ہے، روایات بتاتی ہیں کہ امام علی مقام پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھتیجے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، بے شک، یہ اور میں جو ہے وہ کل کا دن دیکھ رہا ہوں، یہ تمہارے ہاتھ میں پرچی کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بابا جان اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے جناب امام حسن علیہ السلام، تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ بیٹا اس کو اپنے گلے میں باندھی رکھنا، اور جس دن تم پہ انتہائی رنج و علم کا دن ہوگا اور تمہیں لگے گا کہ تم اس دنیا سے جانے والے ہو، اس دن انتہائی مشکل کے دن تم نے یہ تعویذ کھولنا ہے، اس میں میری آخری نصیحت ہے اور اس نصیحت کو تم نے پلے باندھ لینا ہے۔ تو چچا جان آج کے دن سے بڑھ کر میرے پہ اور کون سا رنج و علم کا دن ہوگا؟ چچا جان سے یہ اجازت طلب ہو رہی تھی کہ مجھے جانے دیں میدان کربلا، وہ اگلا دن تھا نا، یہ رات کی بات ہو رہی ہے، اور آج کے اس لمحوں سے پہلے کون سا رنج و علم کا دن اس کے بعد آئے گا ایسا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، ہمیں اپنی شہادتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ہمارے خانوادے کو کیسے کاٹا جائے گا مجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ تعویذ کھولا تو اس میں میرے بابا کی جناب امام حسن علیہ السلام کی یہ وصیت تھی، اور بڑی اسٹرکٹلی وصیت تھی کہ جب میرے بھائی کو دیکھو کہ وہ مشکل میں ہے اور اس کی جو مشکل ہے وہ نہ حل ہونے والی نظر آ رہی ہے، تو تم نے میرے بھائی سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے۔ دیکھیں یہ کیسا حسن انتظام ہو رہا تھا، یہ کیسا اس کو آپ حسن انتظام ہی کہیں گے کہ کئی سال پہلے جو ہے اس شہادت کی تیاری ہو رہی تھی۔ جناب ام سلمہ کا آپ نے ذکر فرمایا، اور جناب ابی حسن علیہ السلام کی ہم نے بات سن لی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری خواب میں آئے، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے چہرہ اقدس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ مبارک بھی نہیں ہے قدموں میں، آپ کے چہرے پہ دکھ کے اثرات ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ حسین جو آپ کی زبان مبارک
मुबारक को चूसते थे, उनकी खुराक आपका लुआब दहन थी। वो हुसैन अलैहिस्सलाम जो आपकी दोष पे सवारी करते थे, वो हुसैन अलैहिस्सलाम जो आपके सीने पे दौड़ते थे। ये क्या था? ये उस योम आशूर की तैयारी थी, ये आज के दिन की तैयारी थी कि हुसैन जब तुझे प्यासा करबल में तुम प्यासे होगे, तुम्हारा पूरा खानदान आपका प्यासा होगा, तो ये मेरा जुबान चूसना याद कर लेना। जब घोड़े पे सवार होगे और इतने तीर लगेंगे, इतने जो है तुम्हें नेज़े लगेंगे कि कोई आला ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो जिससे तुम्हें ना मारा गया हो, और जिसके हाथ में कोई तीर या कोई नेज़ा नहीं था ना, तो उसने पत्थर उठा के मारा इमाम को। तो उस वक्त मेरे कंधों की सवारी याद कर लेना। और जब तुम्हारे लाशे पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे तो ये मेरे सीने पे चलना याद कर लेना। ये सारा हुस्ने इंतजाम था। बेशक यही हुस्ने इंतजाम है जिसका तज़किरा हम आज करें। बजा फरमाया आपने डॉक्टर इरम साहिबा। जब हम इस शहादत के फ़िक्री पहलू की जानिब आते हैं, ये कहा गया ये जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है, जबकि ये जंग इक़्तिदार की नहीं, ये किरदार की जंग है। ये किरदार का जो है वो एक मार्का है जिसमें इक़्तिदार हार गया और किरदार जीत गया। इस किरदार को, इस फ़लसफ़ा शहादत को समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है? देखिए हुमा, जब शहादत का वक्त है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस जगह, उस मकाम पे अकेले हैं और तमाम असहाब शहीद हो चुके हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सबसे आखिर में इमाम हुसैन अकेले हैं वहाँ पे उस मैदान में, और उस वक्त वो कह रहे हैं कोई है जो मदद को आए। किसको कह रहे हैं? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी नहीं है, शहज़ादा कासिम भी नहीं है, भांजे भी नहीं है, भतीजे भी नहीं है, और इमाम हुसैन की गैरत ये गवारा करेगी कि यजीद से आप कहेंगे कि मेरी मदद को आओ? हरगिज़ नहीं। वो तो उनके सामने है, उनका तो उनको पता है। बेशक किसको कह रहे हैं? किसके बारे में ये सदा है? कोई है जो मदद को आए? शहीद हाजिर है, शहीद मौजूद है, तो वो सदा आज भी मौजूद है। वो आपके लिए, मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, उम्मत के लिए, सबके लिए है। कोई है जो मदद को आए? 313 और 100 की रेशो, 1000 की रेशो आज भी है, 72 और 30,000 की रेशो आज भी है, काफिला तो आज भी मौजूद है। तो कौन है जो जवाब दे? कौन है जो उस काफिले में का हिस्सा बने? और खाली अगर आप ये कहते हैं कि आप मौला हुसैन कह रहे हैं कि कोई है जो मदद को आए, और मैं ये कहूँ लब्बैक या हुसैन, और उस वक्त अगर असर का वक्त हो, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर ये शैलो है। इमाम हुसैन को मेरा खाली जो है वो नारा नहीं चाहिए, लेकिन वो उस वक्त असर अदा कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल उस चीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा और पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जवाब देना पड़ेगा कि लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो सवाल किया, आपके काफिले का मैं भी हिस्सा हूँ। क्यों इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद? क्यों हमारे दिलों के अंदर हमारी रूहें जो है वो बिल्कुल अंदर से जो है वो झंझोड़ी जाती हैं, हिल जाता है हमारा पूरा वजूद? क्यों? क्योंकि करबला उस वक्त भी हो रही होती है, क्योंकि कत्ले हुसैन दरअसल मर गए यजीद। लम्हे मौजूद में देखें, सब कुछ हाजिर है, गायब तो कुछ भी नहीं है। बेश तो कैसे उस शहादत को, उस हाजिरी को आप उस करबला वाले दिन आप महसूस ना करें? आप करते हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो आप कमिटमेंट करेंगे, फिर आप डेडिकेशन के साथ जाएंगे और डेडिकेशन के साथ आप जवाब देंगे कि मैं हूँ, आपके साथ हूँ, और फिर आपको निभाना पड़ेगा, और फिर उस तर्ज से निभाना पड़ेगा जैसे वो चाहते हैं। क्योंकि इश्क की जो मेराज है वो हुसैनियत के कत्ल में आपको ना, हुसैनियत की शहादत में आपको नज़र आती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने नफ्स के साथ, आप अपनी ख्वाहिशात के साथ, जिसको अल्लाह ताला कहता है कि अपने अंदर के बुतों को मत पूजो, उन बुतों के साथ आप हुसैनियत को लब्बैक कहेंगे? हरगिज़ नहीं। बहुत अच्छे अंदाज में आपने इरम साहिबा इस कॉन्सेप्ट को उजागर किया है। फ़लसफ़ा शहादत को समझना क्यों ज़रूरी है और इसके साथ साथ किरदार हुसैनी को जगाना यकीनन इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है। ज़रूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और जहाँ शहादत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात होती है तो शायर ने इसको अपने अल्फाज में यूँ बंद किया है कि घोड़ों ने रोंद डाला है लाशा हुसैन का, घोड़ों ने रोंद डाला है लाशा हुसैन का, ए दश्ते करबला के मुसाफिर तुझे सलाम, जलती हुई ज़मीन पे सजदाए आखिर अदा किया,
जलती हुई ज़मीन पे सजदाए आखिर अदा किया, नेज़े पे है बुलंद तेरा सर तुझे सलाम। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है शहादत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से, जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल बात है ख़ानम। मैं उसका तज़किरा करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की, तो इसकी आला मिसाल हमें मैदान करबला में मिलती है और रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम व दायम रहेगी। इसका तज़किरा बार बार किया जाएगा, लेकिन अब उस जानिब आते हैं कि हम इसका तज़किरा क्यों करते हैं। देखिए, ये कुरान का तरीक़ा है। कुरान ने हमें जो चीज़ सिखाई है वो ये कि अपने गुज़श्ता अदवार से कुछ सीखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमने वक्त नहीं गुजारा, लेकिन अल्लाह ने हमें कुरान में कौम मूसा के अहवाल बताए। इसी तरह हज़रत ईसा की कौम ने क्या किया, इसी तरह कौम लूत का क्या हुआ, कौम समूद का क्या हुआ, कौम जनाब हूद और जनाब सालेह, और बहुत सारी दास्तानें जनाब मलिका सबा का, हज़रत सुलेमान का। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हैं? कुरान से। तो कुरान ने हमेशा तारीख़ के ताबनाक और पस्तरीन, चाहे वो तब्बत यदा अबी लहब की सूरत क्यों ना हो, दोनों को ज़िंदा रखा है ताकि आने वाले वक्तों में सीखा जा सके। और करबला भी एक ऐसी ही मिसाल है, कुरान ही नहीं है लेकिन आज के दौर के लिए, हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि जो वहाँ फ़िदाकारी का जज्बा है वो इतना अनमोल है। जिस तरह जनाब हबीब के रजज़ इतने प्यारे हैं, वो मैदान में जाते हुए कहते हैं कि मुझे बूढ़ा ना समझना, मुझे बूढ़ा ना समझना, क्योंकि मैंने हुसैन के चेहरे को देखा है। और जब मैं हुसैन के चेहरे को देखता हूँ, हबीब जवान हो जाता है। और इमाम वो तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो मेरी उम्र पर ना आना, मेरे पास जो मेरी सबसे बड़ी ज़ात है, या हम अपनी ज़बान में कि सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी होप है, वो इमाम हुसैन की ज़ात है। बेशक, और यही फ़लसफ़ा शहादत का वो पैगाम है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को भी आगाह कर दीजिए। देखिए, इमाम हुसैन ने वाज़ेह फरमाया कि ला अरा मौतन इल्ला सआदा वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा। मौत मेरे लिए सिवाय सआदत के कुछ भी नहीं, यकीनन, और ज़ालिमों के साथ जीना मेरे लिए सिवाय नंगवार के और कुछ भी नहीं। फरमाया, अगर मेरी शहादत से इस्लाम ज़िंदा होता है, या सियूफ खिजूनी, ए तलवारों आओ मुझे काट डालो। अगर मेरी जान देने से इस्लाम ज़िंदा होता है, ए तलवारों आओ मुझे काट डालो। देखिए, इमाम ने हमारे लिए वाज़ेह कर दिया कि शहादत एक इंसान की जान का जाना नहीं है, इस्लाम का ज़िंदा होना है। बेशक, उसकी सरबुलंदी में एक अहम किरदार है, एक होप है, यकीनन। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरमा नाहिदा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम आज की बात करते हैं, आज के मुसलमान की बात करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करें। कि आज हम इक़्तिदार के पुजारी हैं, इक़्तिदार की हवस है, हमारे अंदर इक़्तिदार की लालच है, या हम किरदार की जंग लड़ना चाहते हैं, किरदार को जिताना चाहते हैं और किरदार की सरबुलंदी के लिए अपने अंदर के इंसान को और मुसलमान को जगाना चाहते हैं। जी हुमा, अगर मैं किरदार हुसैनी को अगर एक जुमले में बयान करना चाहूँ तो वो जुमला ये है कि ताकत हक नहीं है, बल्कि हक ताकत है। वाह, क्या बात। और हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? वो ये आज का दिन है, वो सानिहा करबला है, वो योम आशूर है, वो शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम है। क़यामत तक जब जब हक और बातिल की बात आएगी, हक और बातिल को जो है वो उनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो एक तरफ यजीदी कुव्वत होगी, एक तरफ हुसैनी कुव्वत होगी। हर दौर में यजीदी कुव्वत भी मौजूद होती है और हर दौर में हुसैनी कुव्वत भी मौजूद होती है।
اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں عقل بھی عطا کی, ہمیں شعور بھی عطا کیا, تو ہم نے وقت کے حسین کو پہچاننا ہے, ہم نے وقت کے حق کو پہچاننا ہے کہ آیا حق کس جانب ہے. اور حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے, حق والے قلیل ہوتے ہیں, حق والے کچھ تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو میں آج کے دن شہادت حسین کو اور امام علی مقام کو جو ہے اپنے جو ہے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گی کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین نکھرا ہوا قلندر, حسین بپھرا ہوا سمندر, حسین بستے دلوں سے آگے, حسین اجڑے دلوں کے اندر, حسین سلطان دین و ایمان, حسین افکار کا سکندر, حسین ہے آدمی کا رتبہ, حسین ہے آدمی کا منے در, خدا کی بخشش ہی خیمہ زن ہے حسین کی سلطنت کے اندر. حسین داتا حسین راجا, حسین داتا حسین راجا, حسین سندر حسین سندر, اور نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر ارم, ہم پروگرام کے اختتام کی جانب اب ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ بیداری کردار حسین کو اجاگر کرنے سے آئے گی. یہ بیداری تب آئے گی جب ہم فلسفہ شہادت کو سمجھیں گے. کیسے سمجھیں گے؟ امام حسین کی قربانی انسانیت کو ایک انڈیویژول لیول پہ, کلیکٹیو لیول پہ اور یونیورسل لیول پہ میسج دے رہی ہے. بالکل دے رہی ہے. انڈیویژول لیول پہ آپ جائیں تو امام حسین آپ کو بتا رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, عشق کیا ہے. عشق میں دو نہیں ہیں, عشق میں آپ کو گردن تن سے جدا کرنی پڑتی ہے. اور امام حسین یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہاری جانیں, تمہاری مال, تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں. وہ مقصد ہی ہم بھول گئے, وہ مقصد ہی ہمارے دلوں سے, ہمارے دماغوں سے, ہماری روحوں سے کہیں اوجھل ہو گیا. آپ اس دنیا میں دل لگا رہے ہیں جنہوں نے نبی کے نواسوں کو نہیں چھوڑا, تو یہ آپ کو اور مجھے کیا دے گی, کیا ملے گا اس دنیا سے. تو یہ جو اس دنیا کی حقیقت ہے, اس دنیا کی جو ریالٹی ہے, امام حسین نے آپ کو کھول کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے. دیکھیں حسینیت کا درد مذہب ہے, دین ہے, عشق ہے, میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, قرآن ہے. یہ حسینیت کا درد. اگر آج ہم اس درد کو نہیں سمجھتے اور اس کو عمل نہیں کرتے اور اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے ہیں تو ہم تو اندر سے خالی ہیں. بے شک آپ نے بجا فرمایا ہے. بے شک یہاں ہمیں سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. اور یہ آغاز ہے ایک نئی داستان کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا, ایک شہادت کا ایک باب اس طرف ہے تو دوسرا باب لے کر چلتی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا. دین کی سربلندی کا علم اب ان کے ہاتھ میں. اور یہ کہا جاتا ہے, جو کہ آج کا پیغام بھی ہے, کہ سالار کربلا سے نسبت لے کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چلیں اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا دستور بنا دیا کہ جس سے کوئی نہ مفر ہے نہ نکر ہے, اور جو اس سے جدا ہوگا وہ گم کردہ راہ ہوگا. اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہی دستور عین ہے, یہی دستور حق ہے اور یہی دستور حیا بھی ہے. آپ سے چاہیں گے اجازت, اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور جاتے جاتے نور فاطمہ سے گزارش کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے کلام پیش کریں. کرم ہے مجھ پہ نبی کا, عطا حسین کی ہے, خدا کے لطف سے حاصل ولا حسین کی ہے, خدا کے لطف سے حاصل ولا حسین کی ہے. حسینیوں کا لہو اب بھی ہر صبح بہتا ہے, جدھر بھی دیکھو سجی کربلا حسین کی ہے, خدا کے لطف سے حاصل ولا حسین کی ہے. جے
حسین کی ہے کریں گی خلد میں حوریں اسی کا استقبال وہ شخص قلب میں جس کے وفا حسین کی ہے یزیدی تخت جلا ہے یزیدی جلتے ہیں مگر جہاں میں حکومت صدا حسین کی ہے حسینیوں کو عطا ہوگا جام کوثر بھی گلے لگا کے ملی ہر دعا حسین کی ہے الگ الگ ہیں مقامات دونوں کے ساجد فنا یزید کو حاصل بقا حسین کی ہے کرم ہے مجھ پہ نبی کا عطا حسین کی ہے خدا کے لطف سے حاصل ولا حسین کی ہے